రేపు రేపు మానేకండి తీసుకెళ్ళి చూడండి. A very warm welcome to all. I, Maulik Alsha, convener of today's webinar, feel privileged to extend my warm welcome to all presented here. On behalf of Pragyan Foundation, promoter of Pragyan International University, in association with the Global Academy and Lions Club of Kolkata, Harmony. Just a little housekeeping before we get started. If you have any queries during the presentation, please type them into the chat box. And to keep the quality of sound functional during the meeting, please mute yourself. At the end of the webinar, we will share the feedback form link. After filling the feedback form, you all participants will get e-certificate in your mail ID. Now, today's theme is stress management with the help of physiotherapy. We all know there is a strong link between stress and sickness. Mental health conditions are increasingly prevalent, and stress in the workplace and residence is becoming more common. In today's busy life, stress is estimated the biggest health problem. So naturally, we feel tired and drained by the end of the day. We are not able to give 100% at work. So today's webinar will be very beneficial by giving ergonomics discussions on how to make our work and home environment harmonious by performing our best every day. Physical therapy or physiotherapy is provided by proficient physical therapists who promote, maintain, and restore health through physical examination, diagnosis, prognosis, patient education, physical intervention, rehabilitation, disease prevention, and health promotion. Today, we are very excited and grateful to have a guest speaker, renowned physiotherapist, Dr. Vikas Singh from Kusum Spine and Neuro Rehabilitation Center, Vasant Kunj, New Delhi. Kusum Spine and Neuro Rehabilitation Center's main goal is providing maximum rehabilitation in minimum time period. Now, further ado, we will turn over to our guest speaker, specialist in physiotherapy, Dr. Vikas Singh. May I now request Dr. Vikas Singh for giving your valuable insights on stress management. Please, sir. Good evening, all of you. Myself, Dr. Vikas Kumar Singh. I am working Kusum Spine Neuro Rehab Center, Vasantpur, New Delhi. बेसिकली पहले मैं अपने रिहैब के बारे में बताता हूँ। SCI पेशेंट के लिए हमारा मेनली रिहैब है न्यूरो रिहैब सेंटर। जो भी SCI पेशेंट होते हैं उसके लिए हम प्रॉपर रिहैब प्रोटोकॉल तैयार करते हैं।
तो टुडे माय टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अनेक प्रकार का स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन में ला देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रेस क्या है। सॉरी, मैं पहले एक बार शेयर कर देता हूँ स्लाइड। हेलो, anybody tell it what is stress according to you? Okay, I will start. Stress can have a big important on your body, mentally, physical, emotional, and behavior. Reaction to a perceived demand and threat. जब भी हमारे वीडियो करेंगे ऑन करके यार बुल्ला के सामने मुंह रखते हैं। Dr. Ghazala, I'll request you to please mute yourself. I will start again. What is stress? Stress क्या है? Mentally, physical, emotional, and behavior reaction to a perceived demand and threat. जब भी हमारे सामने कोई डिमांड आ जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाता है जिसके लिए थ्रेशफुल कंडीशन आ जाती है, तो हम उस सिचुएशन को हम थ्रेश कहते हैं। यानी जैसे कि आप समझ सकते हो कि अचानक आप कुछ कर रहे हो और अचानक से कोई कॉल आ गया जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रहा है, आपको अचानक से कुछ ऐसा बर्डन आ गया जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आज ये चीज ना हो, तो उसे हमें स्ट्रेस कहते हैं। जीवन में स्ट्रेस आना आम बात है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, बस इसको हम परसीव कर सकते हैं। इसका हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज हम जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है और इसके हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस के बेसिक 4 सोर्स होते हैं। सोर्स इन द सेंस कि जिसकी वजह से स्ट्रेस हमें मिलते हैं। सबसे पहला आता है थ्रेट, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर और कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले थ्रेट। जब भी हमें किसी चीज से डर लगने लगता है, किसी चीज का डर हमें हमारे सिर पे होता है, तो हमें स्ट्रेस सिचुएशन में ला देता है। लाइक द थ्रेट कैन बी losing job, the threat can be losing job, the threat can be losing in the business, the threat can be losing temper and getting into the fight। यानी जब आप किसी से फाइट कर रहे हो या आपको डर होता है कि नहीं मेरा जॉब जो है मेरे हाथों से चला जाएगा, तो उस कंडीशन को जो हम कहते हैं थ्रेट करते हैं। यानी डर की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसे हम थ्रेट करते हैं। सेकेंड वन, फ्रस्ट्रेशन। कई बार हम कुछ सिचुएशन से लेके कुछ चीजों को, ऐसा कोई व्यक्ति, कई बार क्या होता है, कितने सिचुएशन होते हैं, कभी कोई क्या ऐसा व्यक्ति जिससे बड़े ही डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया किसी वजह से, या वो हमारा पर्सनल लाइफ हो या किसी का फिजिकल वजह से या किसी अन्य की व्यक्तियों की वजह से, जब हम डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या होता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाना, लड़ाई करना, एक दूसरे से लड़ने लगना, जिसे फ्रस्ट्रेशन। थर्ड वन, प्रेशर। जब हम किसी भी प्रेशर सिचुएशन में आते हैं तो हमें स्ट्रेस का एहसास होने लगता है। प्रेशर कुछ भी हो सकता है। प्रेशर होता है आपको अपनी इंप्रूवमेंट देना। आप जब जॉब कर रहे हो, किसी प्राइवेट जॉब में हो, तो वहां ग्रोथ दिखाना, या आपकी कंपनी वर्क कैसी चल रही है, आप जो काम कर रहे हो उसको कैसे लेके जाना, तो इस टाइप के प्रेशर की वजह से भी हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम आ जाते हैं। चौथा आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि इस रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनेक प्रकार के लोगों से अपना रिश्ता जोड़ते रहते हैं,
चाहे ऑफिस मेट हो, कलीग हो, या जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ। तो क्या होता है, सबकी थिंकिंग और सबकी जो तरीका होता है डिफरेंट होते हैं, जिसके वजह से हमें कंफ्लिक्ट निकलता है, जिससे हमें स्ट्रेस का सामना पड़ता है। मान लो कि आप कुछ बोल रहे हो लेकिन उनको वो बातें पसंद नहीं आ रही है, लेकिन वो जो बातें बोली वो आपको पसंद नहीं आ रही, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, आपके दिमाग में एक टेंशन हो रहा है, तो इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। देन अगेन स्टार्ट द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस। देयर आर टू टाइप्स मेनली स्ट्रेस। पहला स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। स्ट्रेस यानी पॉजिटिव स्ट्रेस, हैज बीन फ्लोइंग कैरेक्टर्स। पॉजिटिव इतना से कि वो पॉजिटिव है, आपके लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेस हो रहा है। जस्ट लाइक न्यू जॉब, अगर आप अभी अभी कॉलेज पास आउट किए हो, अपनी डिग्री कंप्लीट किए और आपको न्यू जॉब सर्च करना है, तो इसके लिए भी आपको क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है कि यार मुझे जॉब मिलेगी, कैसी मिलेगी, मैं कैसे जॉब हैंडल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है, आप हमेशा पॉजिटिव वे में सोच रहे हो कि मैं जब जॉब पे जाऊंगा तो मुझे क्या होगा, फर्स्ट डे मेरा कैसा होगा, मेरा कैसे जॉब स्टाइल आगे की तरफ चलेगा। सेकेंड वन, जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो अपने बच्चों के लिए स्कूलिंग की सर्च करना, सर्च द स्कूल, उसमें भी क्या होता है, आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप जाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस। ये शॉर्ट टर्म होता है, कम समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म नहीं जाता है। नेगेटिव स्ट्रेस वो क्या होता है, लूजिंग अ मैच। जस्ट लाइक कि आप मैच खेल रहे हो और जैसे ही आप मैच खेलने गए हो और आपने ये सोच के गए कि आपका कोई प्लेयर हो, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनको ये होता है कि वो आज मैच खेलने जा रहे हैं, तो उनके माइंड में ये होता है कि आज मुझे मैच जीतना है। दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। वो एक स्ट्रेस के फुल एक एनर्जी के साथ जब वो फाइट करते हैं, दिस इज पॉजिटिव। लेकिन अगर इन द डे क्या होता है कि किसी कारण बस किसी वजह से हम मैच जाते हैं, मैच हम हार जाते हैं, दिस इज अ निगेटिव स्ट्रेस। उसके बारे में थिंकिंग करने लगते हैं कि हमारी गलतियां क्या थी, हम किस वजह से हार गए। तो इस प्रकार के स्ट्रेस को हम निगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। लूजिंग अ लव इट वन, यानी कि अपने जो आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं और अचानक वो रिलेशनशिप आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है इसी को हम निगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रेस। अब हम पॉजिटिव टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस देख लिए, अब हम देखते हैं डिस्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट स्टेट यूजुअली शॉर्ट टाइम। मैंने पहले ही बताया कि जो स्ट्रेस होते हैं दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टाइम होते हैं, लॉन्ग टाइम होते हैं। जो एक्यूट स्टेज यूजुअली फॉर द शॉर्ट टाइम एंड मे बी ड्यू टू द वर्क प्रेशर, मीटिंग डेडलाइन प्रेशर या माइनर एक्सीडेंट, ओवर द एक्साइटिक, इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी। अचानक से आप ज्यादा एक्टिविटी कर रखे हो, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आना शुरू होता है। अचानक से आपकी जॉब लॉस होने की प्रेशर होती है। मीटिंग डेडलाइन, मुझे आज 4 बजे मेरी मीटिंग है, उस डेडलाइन की वजह से मैं बहुत सारा वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस मीटिंग में भी बैठना है, तो इसकी वजह से भी प्रेशर हो सकती है। Then again, chronic stage is a prolonged stage. That is the week, month, and every year. Chronic, short-term, acute, develop day by day, and again started the chronic stress. जब आप छोटी-छोटी चीजों से आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं और उसको किसी से आप शेयर नहीं कर पाते हो। क्या होता है, कभी-कभी हम ऐसे करते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है जो हम अपने कलीग्स, अपने जो जान पहचान के लोग हैं, जो फ्रेंड है या अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते किसी वजह से। तो वो चीजें हमारे अंदर बैठती जाती है तो धीरे धीरे वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि वो एक क्रोनिक स्ट्रेस का रूप धारण कर लेती है। अब साइन ऑफ द स्ट्रेस, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, बिहेवियर। फिजिकल, तनाव की वजह से अनेक प्रकार का हेडेक होता है, फास्ट ब्रीथिंग होने लगती है, आपकी जो हार्ट बीट है तेज होने लगती है। फिजिकल साइंस क्या होते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सोता नहीं है और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सोते रह जाता है। बॉडी पेन होने लगता है, स्टोमक पेन होने लगता है, स्वेटनेस आनी शुरू हो जाती है, पसीना आना आपको अचानक से आना शुरू हो जाता है, आपके बॉडी में क्रैम्प होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि आपका शरीर बहुत ज्यादा पेनफुल है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द फिजिकल स्ट्रेस। मेंटली, जब इंसान मेंटली किसी वजह से डिस्टरबेंस होता है, जब कोई काम करता हो और अचानक से उसमें किसी और वजह से वो डिस्टरबेंस हो, इंसिडेंट, नेगेटिविटी, आपके चारों तरफ कोई नेगेटिविटी इंसान है जो आपको हमेशा नेगेटिविटी डीमोटिवेट करते रहता है, उसकी वजह से आप टेंशन हो जाते हैं। दिस इज मेंटल एंड बिहेवियर साइन। बिहेवियर एंड इमोशन मोस्ट ऑफ द इक्वल। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इंसान हमेशा मूडी हो जाता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी आप अपने कलीग के साथ देखते होंगे या अपने फैमिली मेंबर में आप देखते होंगे, जब वो स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो वो मूडी हो जाता है, चिड़चिड़ापन।
छोटी छोटी बातों पे आपसे लड़ने लगता है, अगर आप अच्छी भी बातें कर रहे हो तो भी वो आपसे फाइट करना शुरू कर देता है। तो इस टाइप की जो स्ट्रेस होते हैं उसको हम कहते हैं बिहेवियर साइंस। सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस, लॉस ऑफ मेंटल कंट्रैक्शन, आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, डिप्रेशन में जाने लगते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, बात फैमिली की बातें और आपकी बात कंपैरिजन एक साथ नहीं मिलने लगती है, आपकी बात कुछ होती है, फैमिली कुछ कहना शुरू कर देता है, कोल्ड हो जाता है, स्वेटनेस, हैंड न्यूकस होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होना लगता है, आपको सही तरीके से आपको डाइजेशन की दिक्कत हो जाती है, शोल्डर या बैक पेन होना शुरू हो जाता है, वॉकिंग लॉन्ग हर्स, लूजिंग टच एंड विद फ्रेंड फैमिली। क्या होता है जब आप टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हो, तो धीरे धीरे क्या होती है कि फैमिली के साथ आपका कनेक्टिविटी कट होनी शुरू हो जाती है, आपके दोस्तों के साथ जो कनेक्टिविटी है वो कट होने लगती है धीरे धीरे। कॉजेज ऑफ द जॉब, कॉजेज ऑफ द स्ट्रेस क्या क्या है? सबसे पहले जॉब इनसिक्योरिटी। अगर आप किसी प्राइवेट फील्ड में हो तो वहां पे सबसे बड़ा जो स्ट्रेस आने का जो कॉजेज है वो है कि जॉब इनसिक्योरिटी। देखिए प्राइवेट जॉब जो है हिंदी मूवी के हीरो की बहन की तरह होता है, जो हमेशा हर वक्त मुश्किल में ही होती है। आप अगर हिंदी मूवी देखते हो हर कोई, तो उसमें जब वो हीरोइन की जो बहन होती है उनको देखते हो कि हमेशा किसी न किसी मुश्किल में वो होते हैं। कैसे हमारा प्राइवेट जॉब होता है, हमेशा हमारे ऊपर एक तलवार लटकी होती है, अगर हमने अच्छा नहीं किया तो हमें डर है कि कल हमारा बॉस हमें आके हमारे जॉब से ना निकाल दे। दूसरा, अगर आपका बॉस अच्छा ना हो, आपकी जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो आपके अकॉर्डिंग ना हो, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेसफुल होगा। हाई परफॉर्मेंस डिमांड, आपका बॉस, आपका जो कंपनी है, आपकी जो आप जिस फील्ड में हो, या आप मेडिकल फील्ड से हो या नॉन मेडिकल फील्ड से हो, आईटी फील्ड से हो, तो हर किसी में क्या परफॉर्मेंस डिमांड होता है कि आपको काम अच्छा करके देना है। अगर आपने काम अच्छा करके नहीं दिया तो उसकी वजह से भी आपको जो स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। बैड बॉस, मैंने अगेन बोला था कि अगर आपका बॉस आपके जैसे अच्छा ना हो, आपको एक भाई की तरह ना ट्रीट करके, एक बॉस एक एम्प्लॉय की तरह अगर ट्रीट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आप स्ट्रेसफुल में जा सकते हैं। वर्क प्लेस कल्चर, आपके अकॉर्डिंग आपका कल्चर मैच ना करे, जस्ट लाइक कि आप साउथ के साइड और नॉर्थ में आ गए और वो कल्चर आपको मैच नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग आप डल नहीं पा रहे, एनवायरमेंट में सेटल नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम, कभी कभी क्या होता है कि पर्सनल प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक कि अपन मैरिड हो, आपका लव लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, दोनों में डिस्टरबेंस आनी शुरू हो गई, और आप लव लाइफ डिस्टरबेंस होना शुरू हो गया, और अचानक से क्या हो गया कि वो चीज डिस्टरबेंस हो गया और आप प्रेशर में आना शुरू हो गया। उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट को, कैसे स्ट्रेस मैनेज करेंगे। स्ट्रेस डिजिटल नमनेस सिम्टम्स विच वेरी अकॉर्डिंग टू प्रेशर, सिचुएशन एंड सिक्योरिटी। आप उस कंडीशन से उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज भी है, जब हम स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो लॉस ऑफ वर्क होगा, कम वर्क होगा, हम कम वर्क में हम क्या करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अपने काम को और अच्छा कर सकते हैं। स्लीप बेटर होगा, इसका एडवांटेज, अगर हमारा स्ट्रेस कम होता है तो हमारा जो स्लीप है वो बेटर होगा, हम अच्छे तरीके से हम सो सकते हैं। कंट्रोल योर वेट, हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद मेंटल मूड, हमारा मूड बहुत अच्छा होगा, काफी अच्छे, हम हमेशा जो मूड हमारा होगा काफी अच्छा मूड होगा, हम स्माइली फेस होगी हमारे ऊपर। बेटर विद फैमिली एंड फ्रेंड, हम फ्रेंड एंड फैमिली के साथ अच्छे तरीके से रह पाएंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है स्ट्रेस की, कि अगर हम स्ट्रेसफुल में हैं तो क्या होगा कि आप आफ्टर योर लव लाइफ, आपका जो लव लाइफ है वो डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, अचानक से लॉस होना शुरू हो जाएगा, मेकिंग इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम वो वीक होना शुरू हो जाता है। The three types of the stress management, ABC। A मतलब अवेयरनेस, सबसे पहले आपको स्ट्रेस के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए कि आपको किसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, आप किस बातों को लेके आप टेंशन में जा रहे हो, आप क्या ऐसा किया जिसकी वजह से आपको टेंशन फील हो रहा है। दूसरा बैलेंस, एक कंट्रोल, एक बैलेंस लेके चलना होगा, ज्यादा स्ट्रेस है तो उस बातों पे आप ध्यान ना दें, आप उस तरफ मूव करें जो आपको एंजॉय दे। जस्ट लाइक आपकी जो हॉबी हो, जिस हॉबी से आप एंजॉय, कोई बंदा म्यूजिक सुन के काफी खुश होता है, कोई प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल बास्केटबॉल खेल के वो काफी खुश होता है, तो अपने आप को उस तरीके से उस तरह डाइवर्ट करने की कोशिश करो। तीसरा कंट्रोल, खुद के माइंड पर आप कंट्रोल करो। वो कैसे करेंगे? हम मेडिटेशन कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप के कंट्रोल कर सकते हैं।
हाउ टू स्ट्रेच द बॉडी। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे किस किस बॉडी के किन किन पार्टों पे इफेक्ट होता है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब होगा, आप कोई भी खाना खा रहे हो तो सही से आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, रिस्पिरेटरी सिस्टम डिफेक्ट होगी, इम्यूनो सिस्टम डिफेक्ट होगी, न्यूरो सिस्टम डिफेक्ट होगी, यूरिनरी सिस्टम डिफेक्ट हो जाएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी डिफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव का आपको डिफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, स्केलेटल सिस्टम आपकी जो कोनिक स्ट्रक्चर है, आपकी जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो होना डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, इट कैन मेक यू फील हैप्पी। जब आप एक्सरसाइज करोगे, रेगुलर वे में एक्सरसाइज योगा करोगे तो आप फील हैप्पी, हमेशा खुश रहोगे। हेल्प विद वेट लॉस, अगर आपका ज्यादा वेट है तो उसको लॉस करने में आप हेल्प करोगे, अपने आप को खुश रखोगे। फिर उसका योर मसल एंड बोन, आपका मसल्स एंड बोन अच्छा तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा, एनर्जेटिक लेवल होगा, हमेशा आप एनर्जेटिक रहोगे। स्किन हेल्दी होगी, आपकी जो स्किन होगी काफी हेल्दी होगी और एक ब्राइटनेस सी आएगी आपके फेस के अंदर। उसके बाद क्या है कि आप मेडिटेशन करते हो तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ब्रेन है जो वो धीरे धीरे एक पॉइंट पर फोकस होता है। मेडिटेशन जस्ट लाइक द पॉइंट ऑफ द फोकस ऑफ द ब्रेन। अगर आप अपने ब्रेन को एक काम में फोकस करते हो, जिस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है उसको अवॉइड करके आप जिस चीजों में एंजॉय कर रहे हो, जस्ट लाइक आपको ट्रेवलिंग करना पसंद है, आपको रीडिंग बुक करना पसंद है, किसी किसी बंदे को क्या होता है कि उसको खेलना पसंद होता है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को बैंजो बजाना पसंद है, तो अपने आप को उसके अनुसार से आप डालना शुरू कर दो, रिलीज हो जाएगा। थैंक यू, नो स्ट्रेस, थैंक यू। या दिस टॉपिक स्ट्रेस, यानी किसी को कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। Thank you, sir, for giving your admirable insights about stress management. We have come to the end of our webinar. I would like to thank everyone who made this webinar possible. Thank you all participants, Pragyan team once again. Now, Dr. Vikas Singh, we want to felicitate you with the certificate of appreciation. Thank you a lot, sir. Now, this is the certificate of appreciation to Dr. Vikas Kumar Singh. Now, all the participants, please turn on your videos so we could take group photos. Please, all the participants, turn on your videos.
Also, please check the chat box for the link of feedback form that I have already shared, and fill the feedback form and get your e-certificates in your mail ID. Please fill the feedback form that I have already shared. And you will get this participation certificate, which you can see on my screen. Thank you, everyone. We appreciate you being here. We hope to see you soon in our next webinar. We will share the registration form for the next webinar in WhatsApp group. So thank you again to Dr. Vikas Singh, and today, bye.